Okay, good. So what is the meaning of visibility control? What is the meaning of visibility control? Visibility control means the member of class is visible to another class or not. These are the visibility control. Okay, member of class is visible to another class or not. So these are nothing but visibility control. Okay, visibility control means member of class as well as class is available to another class, is available to another package. This is nothing but visibility control. Okay, so basically Yes, there are sir. four types of modifier available in Java it- in term of visibility control. Okay, we'll explain each and every functionality of visibility control. First is what public, second is what protected, third is what private, and fourth is what default. Default we don't write. If any of the modifier is not written along with the member of the class, then by default consider it what default, but we should not write. Okay, you have to remember this. We should not write default modifier. Okay, so there are four possibilities of point by point. We will I am elaborating each and everything. So okay, these are four specifier can be used with. First I'm starting these all four access specifier we can use along with the variable method only. We cannot use note note we cannot use what visibility control along with local variable. Local variable के साथ public, protected, private we cannot use. Okay, we Yes, sir. cannot use visibility control along with block like static block, instance block, right? Yes, sir. Okay, so we can use these four access specifier along with the variable. Variable means what? Static and non-static variable. And method static, non-static. And what constructor? Along with the constructor we can also use and along with the inner class. So means ये जो मॉडिफायर है हम इनको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? वेरिएबल. वेरिएबल भी कैसे होना चाहिए? आइदर स्टैटिक और नॉन स्टैटिक. मेथड आइदर स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, कंस्ट्रक्टर और इनर क्लास. इन चार चीजों के चार मेंबर्स के साथ हम विजिबिलिटी कंट्रोल को यूज कर सकते हैं, राइट? Okay, in the next point, there are three places at where we cannot use what visibility control. What are the places? Like local variable, like static, non-static block. Okay, and third one is what? Along with the class, top level class. I'm talking about top level class. Top level class we can use only public and default. Public and default. We'll tell you why public and default. Okay, point is clear or not? Okay, Yes, sir. suppose the two things is what कि आप जो है वेरिएबल्स को विजिबिलिटी कंट्रोल को आप कहाँ कहाँ यूज करेंगे? क्लास के साथ यूज कर सकते हैं. इजी है, देखो मैं दोबारा से यहाँ पे एलेबोरेट करता हूँ. ये क्लास है. ओके, क्लास के साथ क्या क्या अलाउड है? पब्लिक और डिफॉल्ट. पब्लिक और डिफॉल्ट. डिफॉल्ट मींस विल नॉट राइट. ओके, लिखेंगे नहीं. इफ अगर कुछ भी नहीं लिखोगे दैट मींस डिफॉल्ट विल कंसीडर एज ए डिफॉल्ट. ओके, वेरिएबल के साथ, वेरिएबल सपोज क्लास का कोई वेरिएबल है तो वेरिएबल के साथ क्या क्या लगा सकते हैं? पब्लिक भी लगा सकते हैं. विल टेल यू द मीनिंग. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक? अभी ये सोचो कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है. पब्लिक भी लगाया जाता है, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, डिफॉल्ट. डिफॉल्ट को बस ये ध्यान रखना है वी डोंट राइट, लिखा नहीं जाता डिफॉल्ट. ठीक है ना? इन चारों में से, इन तीनों में से अगर कुछ भी नहीं लिखा गया दैट मींस व्हाट? डिफॉल्ट कहलाएगा. ओके, सेम कहानी मेथड के साथ है. मेथड के साथ ये वेरिएबल कैसे होने चाहिए? स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, स्टैटिक एंड इंस्टेंस ओके, इसी तरीके से मेथड तो ऑब्वियसली स्टैटिक नॉन स्टैटिक होते ही हैं. मेथड तो लोकल नहीं होते ना. मेथड स्टैटिक नॉन स्टैटिक. कंस्ट्रक्टर यू कैन ऑल्सो यूज these four along with the constructor. ओके, क्या क्या चारों? ये चारों आप यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के साथ, राइट? ब्लॉक के साथ, ब्लॉक
के साथ नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। ब्लॉक समझते हैं, स्टैटिक नॉन स्टैटिक ब्लॉक जो मैंने पढ़ाए थे, क्या नॉट अलाउड है? विजिबिलिटी कंट्रोल, विजिबिलिटी कंट्रोल नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। ओके, लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल से समझ रहे हैं ना, अ वेरिएबल विच डिक्लेयर्ड इनसाइड द मेथड और कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक, we cannot use visibility control along with the local variable. Okay, so these are the four things, but एक और चीज है जो कि that is what inner class, class के अंदर class, that is what inner class, class के अंदर class, that is what inner class. You can use all four at a time. You can use only one, but the possible combination is what? All four along with the inner class. class के अंदर जब class बनाओगे, दैट मीन्स उस लेवल पे आप क्लास के साथ, वो क्लास कैसी हो सकती है? आपकी पब्लिक भी हो सकती है, वो क्लास कैसी हो सकती है? प्रोटेक्टेड भी हो सकती है, वो क्लास कैसी हो सकती है? प्राइवेट हो सकती है, एंड देन डिफॉल्ट भी हो सकती है। ओके, बट दिस इज व्हाट टॉप लेवल क्लास, इसको क्या बोलते हैं हम? टॉप लेवल क्लास बोलते हैं, टॉप लेवल क्लास। ओके, टॉप लेवल क्लास, टॉप लेवल क्लास कैसी हो सकती है? ओनली डिफॉल्ट एंड पब्लिक, या डिफॉल्ट ले सकते हो और पब्लिक, बट प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट नॉट अलाउड। सो मींस व्हाट? नोट में क्या है? टॉप लेवल क्लास can't be declared as what? Declared as private or protected, but but in case in the interview room or any other place, if someone asks to you, can we declare a class as private? So what is your answer? Tell me fast. If someone asks to you, can we declare as a class private? Tell me fast. Your answer should be very clear. We cannot declare private class as top level, but we can use private modifier along with the inner class. So means we can use private, but at top level we cannot use. At inner class we can use, right? Yes, sir. Answer should be very clear. So these are all possibilities. The possibilities समझ में आ गई? Yes, These sir. are all possibilities where you can use, or how many of the or which are the possible things you can use along with the very member of the class, along with the class. Okay, Yes, sir. we'll tell you each and every part about public, protected, private, default. Okay, so these things already I have covered in this section. So means what? This is what we cannot use visibility control along with variable, cannot use along with instance and static block, and we can use only public or default along with the top level class, but अगर top level class के साथ आपने क्या use कर लिया? If you use protected at the top level class, that means what? Invalid. Compile time error. You got my point? Okay, so but means what? What is the access specifier of this class? We are not using, if I'm asking to you, what is the access specifier of, or what is the visibility control of class A? The default. Default. Very good. So this is valid or not? Yes, sir. It's a Valid. valid. What is the default? What is the visibility control of class B? The public. Is this valid? Yes, sir. Very good. Okay, what is the visibility control of class C? The protected, but it is not valid because we can only use public or default with We'll tell you why protected not allowed. Okay, please wait. We'll tell you why protected and private not allowed here. Okay, yes, sir. allowed only public and default. But next question is what? If we declare a class as public, then we must need to, this point you have to remember this. अगर आप किसी क्लास को पब्लिक कर देते हैं, तब उसकी लिमिटेशन बढ़ जाए, एक क्राइटेरिया ऐड हो जाएगा। क्या ऐड होगा? अगर आपने किसी क्लास को पब्लिक किया, then you have to save that class, then you have to save the program with class name. आप मेरी बात समझे? अदरवाइज कंपाइल टाइम एरर आएगी। दैट मींस यू हैव टू लिसन अगेन। ओके, अगर आप किसी क्लास को पब्लिक लगा देते हैं,
तो क्या होगा, तो आपको बस एक मैंडेटरी कंडीशन ऐड हो जाएगी, दैट कंडीशन इज व्हाट, आपको अपना प्रोग्राम भी उसी नाम से सेव करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन सेव एनी ऑफ द नेम, right? You can save your program with any name, any logical name, but you need to remember one thing, if a class declared as a public, for that case you must save your program same as public class name. Got my point? Already discussed, मैं पहले बता चुका हूं उसके बारे में. Okay, okay, any doubt? But we can use all these, what we can use, next point, what we can use all the visibility control modifier along with inner class. We have already discussed, no? Inner class class के अंदर class, that is what, inner class के अंदर class is what, inner class, means what, high level encapsulation. It is used for high level security purpose, high level encapsulation. This is not a part of your subject, will tell you if you want, okay, but this is not a part of your course content. Well, but if you want, if you are interested to learn it, then I will teach you. Okay, these are the 4 possibilities we can use along with the inner class, not from the top, not on the top level class. What are the possibility along with the top level class in terms of visibility control? What are the possibilities of top level class? Very good. So these are all the use possibilities. Okay, so you have to understand. आई एम यूजिंग के लिए ना, मैंने छोटा सा टेबल बनाया है, ये टेबल में से कहीं और भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट आप ये समझ लो ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है सीरियल नंबर. फॉर एग्जांपल इस टेबल के अकॉर्डिंग इजी है, अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगी, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूला जैसा समझ लो इसको. विजिबिलिटी कंट्रोल मॉडिफायर, बी मींस विजिबिलिटी कंट्रोल मॉडिफायर. देखो ए का मतलब क्या हुआ, सीक्वेंस नंबर 1 2 3 4, 4 है ना इसमें. बी का मतलब क्या है, विजिबिलिटी कंट्रोल मॉडिफायर. ओके, सो ये सिर्फ समझने के लिए बनाया, ऐसा कुछ नहीं. जावा, ये जावा नहीं है. ए क्यों बना दिया, कॉलम नेम रख दिया मैंने, है ना, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट एंड प्राइवेट. ओके, पॉइंट, अब ये पॉइंट समझने वाला, सेम क्लास इन सेम पैकेज. अब ये पैकेज का डिस्कशन भूल जाओ, विल लर्न अबाउट पैकेज इन यूनिट 4. ओके, यूनिट 4. बट अभी के लिए याद रखो, सेम क्लास, अगर आपकी सेम क्लास है तो अपनी ही क्लास में सारे मेंबर एक्सेसिबल है, चाहे वो मेंबर पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड हो, डिफॉल्ट हो, प्राइवेट. राइट, सपोज एग्जांपल देखते चलो तो क्लियर रहेगा. ओके, क्या है पॉइंट है सेम क्लास मैं सेम क्लास विजिबिलिटी कंट्रोल, सेम क्लास विजिबिलिटी कंट्रोल. ओके, आई एम सेविंग दिस. अब इस क्लास में सपोज आई एम राइटिंग प्राइवेट वेरिएबल लाइक int a, writing one public variable like float double d. I'm writing one protected variable, try to observe, protected boolean b, and I'm writing one default like string s. You got my point? These all are what, static, or sorry, these are all instance variable. You can use along with the any of the variable like static. This is the combination, static. Okay, static is different thing, already learned. Okay, already learned, you have already learned, I think, about the static. Don't get confused. Static का यहाँ पर अब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप static आगे पीछे कहीं भी यूज कर सकते हैं. You can use static पहले यूज कर लो, चाहे static आप public के बाद यूज कर लो. ओके, ये दोनों कॉम्बिनेशन में रहते हैं. बट आई एम टीचिंग यू व्हाट, विजिबिलिटी कंट्रोल. तो विजिबिलिटी कंट्रोल में मैंने क्या बताया, विजिबिलिटी कंट्रोल वेरिएबल के साथ चारों यूज हो सकते हैं. एक टाइम पे एक होगा, ऐसा नहीं कि आप एक ही वेरिएबल में चारों पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड सब लगाते चले जाओ. दैट इज व्हाट कंपाइल टाइम एरर. ओके, यू गॉट माय पॉइंट. तो आप एक साथ में एक मेंबर के साथ आप एक ही विजिबिलिटी कंट्रोल यूज करेंगे. दिस इज नॉट विजिबिलिटी कंट्रोल, दिस इज व्हाट, एक्सेस मॉडिफायर.
This is what visibility control, public, private, protected and default. इसका क्या है visibility control? Tell me please fast. What The is the default. visibility control of variable x? The default. Default means default. Okay. अच्छा, अब पॉइंट हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. मैं ज्यादा डिटेल में, मेरा पॉइंट ये था, मैं ये टेबल समझाने की कोशिश कर रहा था. सी कॉलम, कॉलम सी का मतलब क्या है? सेम क्लास इन सेम पैकेज. अभी भूल जाओ, पैकेज की कहानी भी डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है ना. सेम क्लास, तो सेम क्लास में, अपनी ही क्लास में पब्लिक भी एक्सेसिबल है, प्रोटेक्टेड भी एक्सेसिबल है, डिफॉल्ट भी एक्सेसिबल है, प्राइवेट भी एक्सेसिबल है. मैं चाहूँ तो मेथड बना दूं. व्हाट आई एम राइटिंग m1 मेथड, m1 मेथड व्हाट पब्लिक. अपनी ही क्लास में किसी भी तरह का विजिबिलिटी कंट्रोल हो, सारे एक्सेसिबल हैं. प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, void, m3. नॉट प्रिंटिंग एनीथिंग. ओके, मैं प्रोग्रामिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कैसे यूज करेंगे. आई एम राइटिंग. यू कैन ऑल्सो यूज स्टैटिक, नो इशू. ओके, स्टैटिक इज डिफरेंट थिंग. Okay, I'm writing simple was static void m4. So tell me please fast. Tell me fast. What is the what is the visibility control of method m4? Default. Very good. What is the visibility control of m2? Protected. Right? Understand? Okay. Okay, I'm adding one more thing in my points. One thing is missing. Point 6. If a class declared as public for that class, if you don't write any of the constructor for that class. If a class declared as a public for that class, if you don't write any of the constructor, then Java compiler will create one default constructor. Default means what? Default means what? Tell me fast, please. One default constructor. Compiler defined constructor. Compiler defined means what? Zero parameter वाला करता है ना. Yes, Default means zero parameter. If a class declared as a public, for that class, if you don't write any of the constructor, then Java compiler will create one default constructor. But this things you already know. I'm not adding these things. Okay. If a class declared as a public, for that class, if you don't write any of the constructor, then Java compiler will create one default constructor whose visibility control is what? This is my thing. This is that things I want to tell you. Okay. Whose visibility control is what? Tell me fast. Control is the default. Visibility control is what? क्या होगा? Default. नहीं, यही तो बताने वाली बात है. वो अगर आपकी क्लास पब्लिक है और आपके क्लास में कंपाइलर ने कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो उसका विजिबिलिटी कंट्रोल क्या होगा? पब्लिक. कब होगा? जब आपकी क्लास पब्लिक है तब. और उसके बाद दूसरी चीज ये है कि वो कंस्ट्रक्टर किसने बनाया हो? कंपाइलर ने. कंपाइलर कंस्ट्रक्टर कब बनाएगा? इफ योर क्लास डजंट हैव एनी कंस्ट्रक्टर. व्हाट माय पॉइंट? Yes, sir. This is the point. This point I want to add. Okay, understand? Okay, good. So for this case, अगर इस क्लास में मैं कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता हूं, बट ये क्लास कैसी है? प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, डिफॉल्ट है या पब्लिक है? Default. Can we write private here? Can we write private here? No, sir. No. Compile time error, invalid modifier uses. Okay, you have to observe the compile time error. Modifier private not allowed here. Can we write protected? No, Not sir. allowed here. Okay, again compile time error. Okay, good. Now can we write private along with the inner class? Yes, private along with the inner class like a. Yes, allowed, no issue. Okay, sorry, कहाँ हुआ? अब protected नहीं हटाया क्या मैंने अभी? Sorry, protected need to remove. Okay,
Can we write class A as a private inner class? Yes, no issue. You can use any of the modifier along with the inner class. Okay, we can write protected. Yes, no issue. Got my point? Yes. Very good. Okay, so these are the possibility along with the methods, right? Okay, now I'm writing. Tell me please first, is this class contains any constructor? No, sir. No. So for if a class doesn't have any constructor, for that case, Java compiler will create one default constructor. Okay, one default constructor. What is that? What is the access mode specifier, or what is the visibility control of that constructor which is created by the compiler? Default. Default. It depends on what? It's depend on class visibility control. If the class visibility control is what? Default. Then default constructor visibility control is what? Default. If the class visibility control is what? Public. Then compiler defined default constructor is what? Public. Okay. Yes, sir. Okay. I will show you. Okay, first I'm not using what? Any of the any of the visibility control along with the class, right? Along with the class. Okay, क्लास के साथ मैंने कोई भी विजिबिलिटी कंट्रोल यूज नहीं किया. फॉर दैट केस जो कंपाइलर इसका कंस्ट्रक्टर बनाएगा वो कैसा होगा? Default. डिफॉल्ट. देखो दिखा देते हैं ना. Now I'm showing you the default constructor. Okay, Java P. What is the name of class? Same class, something like this. Okay, the कंस्ट्रक्टर ये बना. इसके आगे क्या लगा हुआ है? डिफॉल्ट लिखा हुआ है. क्या लिखा है? डिफॉल्ट. डिफॉल्ट लिखा नहीं हुआ था, डिफॉल्ट कंसिडरेबल होता है, राइट? बट इफ अ क्लास saved, if a class declared with public visibility control, public, that means what? That means what? This default constructor also created by the compiler as public along with the public modifier. Now you have to observe. You got my point? These things I have added. Got my point? Yes, sir. This is the clear difference. Will tell you, please people, please patience रखो है ना. Will tell you what is the meaning of public, protected, private. Okay, that's good. So all clear or not? आप Yes, sir. कंस्ट्रक्टर के साथ भी अपना कंस्ट्रक्टर बनाना चाहो, चारों पॉसिबिलिटीज हैं. ओके, सो अपनी पहला पॉइंट क्या था? अपनी ही क्लास में मैं यूज कर सकता हूँ सेम सीमीज वर्ड, सेम क्लास में आप यूज कैसे करोगे? तो आपने क्रिएट तो कर दिए, तो क्या मैं अपनी क्लास एक्सेस कर सकता हूँ? वेरिएबल को एक्सेस कर लो. अब जो वेरिएबल नॉन स्टैटिक हैं उनके लिए ऑब्जेक्ट बना लो. ऑब्जेक्ट किस क्लास का? जिस क्लास के वेरिएबल है. किस क्लास के वेरिएबल है? क्लास का नाम है सेम क्लास वीसी. नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट सेम क्लास वीसी ऑब्जेक्ट. ओके, तो जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स हैं उनको एक्सेस कर लो आप. a1 डॉट नॉन स्टैटिक. कौन कौन से नॉन स्टैटिक हैं? अभी हम a इज नॉन स्टैटिक, राइट? b इज व्हाट? नॉन स्टैटिक. a and b, sorry, a and b, a and b क्या प्रिंट करेगा? डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है ना? a and b. उसके बाद जो नॉन स्टैटिक मेथड है वो मेथड क्या क्या है? सपोज मैं मैसेज प्रिंट करा देता हूँ मेथड के अंदर. मेथड के अंदर वी आर प्रिंटिंग वन मैसेज, सो यू पीपल नॉट गेट कंफ्यूज. m1 public non-static, okay. m2 what? m2 protected यानी कि जो नॉन स्टैटिक. ओके, m3 private and static. m3 private and static. Okay, and m4 default static.
Got my point? Default static M4. So I'm calling, first I'm calling non-static method. So A1 dot M1 and A1 dot M2. A1 dot M2. Okay. Now after that I'm accessing static variable. Okay. With the help of class name. Now we can also access static variable through the reference variable, but we will access through the class name, like what? D and S. D and S, these are the two static variable, D and S. Got my point? D and S. Okay. Now I'm calling no static method through the class name, like M2, M3 and M4. सो ओवरऑल पर्पस इस प्रोग्राम का क्या था? ओवरऑल पर्पस ये समझना है कि सेम क्लास में क्या किसी भी टाइप के पब्लिक अगर कोई मेंबर है तो अपनी क्लास में एक्सेसिबल है? हाँ है। क्या कोई मेंबर प्रोटेक्टेड है तो वो अपनी क्लास में एक्सेसिबल है? अपनी मींस सी का मतलब क्या हुआ? सेम क्लास। यू हैव टू ऑब्जर्व, सी का मतलब क्या हुआ? सेम क्लास में एक्सेसिबल है। डिफॉल्ट भी एक्सेसिबल है, प्राइवेट भी एक्सेसिबल है। मैंने इस प्रोग्राम में करके भी दिखा दिया। ओके, नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व, मैंने चारों ही मेंबर देखो एक्सेस किए हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, चारों ये प्रिंट करा के दिखाए मैंने। चारों मेथड को कॉल कर रहा हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ, है ना, अभी जरूरत नहीं है। चारों तरह के मेथड मीन्स व्हाट? पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, राइट। सारे के सारे मेंबर अपनी क्लास में एक्सेसिबल है। देयर इज नो कंपाइल टाइम एरर। ओके, कंपाइल फाइन, एग्जीक्यूट फाइन। एनी इश्यूज? ओके, वेरी गुड। Okay, now so any issues to understand the column number C? मीन्स अपनी ही क्लास में चाहे किसी भी टाइप का विजिबिलिटी कंट्रोल हो, वी कैन एक्सेस अपनी क्लास में। ठीक है, अगर वेरिएबल है या मेथड है या कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास में एक्सेसिबल है। सी मीन्स व्हाट? सेम क्लास। यू हैव टू ऑब्जर्व सेम क्लास। अब डी की बात करते हैं। डी मीन्स व्हाट? नॉन सब क्लास, मतलब इनहेरिटेंस नहीं लगाया हमने। जब इनहेरिटेंस नहीं लगाएंगे, अब आप सपोज करो ये मेरा प्रोग्राम था, यही अभी वाला प्रोग्राम ले लेते हैं, है ना। नाउ अगेन ओपनिंग सेम प्रोग्राम, अगेन ओपन सेम प्रोग्राम। अब अगर मैं इनहेरिटेंस नहीं लगाता हूँ, ध्यान से समझना, इनहेरिटेंस मैंने नहीं लगाया, यानी कि मैंने एक और क्लास क्रिएट कर दी। सब फॉर एग्जांपल आई क्रिएटेड वन मोर क्लास, तो दूसरे प्रोग्राम में क्रिएट कर रहा हूँ, है ना। आई क्रिएटेड अनदर क्लास लाइक नॉन सब क्लास। ध्यान से समझना, ठीक है ना। नॉन सब क्लास, तो नॉन सब क्लास का मतलब ये, अब यहाँ पर वो कौन से मेंबर है जो इस क्लास के एक्सेसिबल है? ध्यान से समझना भाई, देखो ध्यान दोबारा से देखो। इस क्लास का नाम है सेम क्लास, यानी इस क्लास के कौन कौन से मेंबर नॉन सब क्लास, यानी जब इनहेरिटेंस नहीं लगाएंगे तो कौन कौन से मेंबर एक्सेसिबल हैं, राइट। तो ओनली प्राइवेट को छोड़ के सारे मेंबर एक्सेसिबल है, यानी प्राइवेट मेंबर नहीं एक्सेस होगा। प्राइवेट तो अपनी क्लास के बाहर नहीं जाता है, इसलिए सिर्फ एक जगह यस लिखा है, बाकी सब जगह नो नो नो, हर जगह नो रहेगा, समझे। तो देखो मैं करके दिखा रहा हूँ। पॉइंट डी मीन्स व्हाट? नॉन सब क्लास। नॉन सब क्लास का मतलब क्या हुआ? मैं अगर ये क्लास बना रहा हूँ जिसका नाम नॉन सब क्लास है, मैं इसमें कोई क्लास इनहेरिट नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट इनहेरिटिंग एनी अदर क्लास। ओके, तो किसी दूसरी क्लास के कौन कौन से मेंबर यहाँ पर एक्सेसिबल है, तो आई एम ट्राइंग टू सेम, मैं इन सारे मेथड, सारे वेरिएबल्स को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा। कहाँ पर एरर आएगी? टेल मी फास्ट प्लीज। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अब इस क्लास में मेन मेथड बनाया और उन सबको पेस्ट कर दिया यहाँ पर। तो जल्दी से बताओ कहाँ पर एरर मिलेगी मुझे, इसके हिसाब से देख के बताता हूँ, कोई भी कंफ्यूजन है तो। कि देखो जब नॉन सब क्लास है तो नॉन सब क्लास में कौन कौन से मेंबर एक्सेसिबल रहेंगे? जो दूसरी क्लास जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं किसी दूसरी नॉन सब क्लास में, उसके पब्लिक, उसके प्रोटेक्टेड, उसके डिफॉल्ट, उसका प्राइवेट एक्सेस नहीं हो पाएगा, राइट। तो इस क्लास के जो प्राइवेट मेंबर हैं वो दूसरी क्लास में, यानी कि इस क्लास में एक्सेसिबल नहीं है, राइट। all the private member of any other class which is not accessible to any other class through the inheritance or without inheritance, मतलब इनहेरिटेंस के थ्रू भी पॉसिबल नहीं है
विदाउट इनहेरिटेंस भी पॉसिबल नहीं है. So means we will get compile time error at which line? Can anyone tell me please? You have to observe the program first. इनमें से पहले बताओ कौन सी लाइन पे एरर मिलेगी आपको. कौन कौन प्राइवेट है? प्राइवेट ए है. तो प्राइवेट ए का मतलब क्या हुआ? एट दिस लाइन ऑफ कोड यू विल गेट कंपाइल टाइम एरर सीपी बिकॉज ऑफ ए इज नॉट प्राइवेट. बट यहाँ पर एरर नहीं थी क्योंकि सेम क्लास में एक्सेसिबल है. यहाँ पर एरर नहीं थी ना बिकॉज सेम क्लास में प्राइवेट एक्सेसिबल है. बट अगर क्लास चेंज कर दोगे तो प्राइवेट विल नॉट एक्सेसिबल. these three are not private. Okay, you have to observe. Next, b is what? b कैसा है? b is what? Public, allowed है. m1 is what? m1 is public, allowed है. m2 is what? Protected, allowed है दूसरी सब क्लास में. ओके, तो इतना तो अलाउड है, यहाँ तक कोई एरर नहीं है. नेक्स्ट d is what? dns d is what? Protected, allowed है. सॉरी डी पब्लिक अलाउड है. एस स्टैटिक एस कैसा है? डिफॉल्ट है. डिफॉल्ट अलाउड है. डिफॉल्ट भी अलाउड है. ध्यान से समझना क्योंकि अभी पैकेज के बाद कहानी बदल जाएगी. तो दूसरी क्लास में कौन का जो प्राइवेट है? प्राइवेट यहाँ पर क्या क्या है? M3 प्राइवेट है और प्राइवेट ए है. देखो प्राइवेट कहाँ कहाँ आया है, यहाँ पर सर्च कर लो. ए के साथ आ रहा है, M3 के साथ. तो ए और M3 पर एरर आएगी, अदरवाइज कहीं पर एरर नहीं आएगी. ओके, ए एंड M3 यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर. ओके, यू हैव टू ऑब्जर्व. देखो कहाँ कहाँ आई. M3 मतलब लाइन नंबर 15, लाइन नंबर 15, एंड ए मीन्स लाइन नंबर 6. गॉट माई पॉइंट? सो यू हैव टू कमेंट आउट दिस लाइन. that means what? That means what? We cannot call private member, but we have a trick. But I will not teach you how to access private as well. Okay, I know we have an approach, that is what reflection API. This is what advanced Java we can access, but this is some security related question. But don't ask. But Java doesn't allow to access any of the private member from outside the class. Okay, very good. Now the next point. इतना क्लियर है? बताओ भाई जल्दी से. कॉलम बी एंड कॉलम सी एंड डी. कॉलम सी एंड डी में कोई दिक्कत? सी मीन्स सेम क्लास, मैंने एग्जांपल भी करके दिखाया. डी मीन्स व्हाट? नॉन सब क्लास, मतलब इनहेरिटेंस नहीं लगाया. ई मीन्स व्हाट? वी आर यूजिंग इनहेरिटेंस. अगर आप इनहेरिटेंस भी यूज करोगे, अभी क्या बात चल रही है? पैकेज की बात नहीं चल रही है. सब क्लास मीन्स सब क्लास बनाओगे तो सब किसकी बनेगी? पेरेंट की सब क्लास बनेगी. मीन्स व्हाट? इनहेरिटेंस लगेगा. इनहेरिटेंस लगेगा तब भी जाके प्राइवेट मेंबर एक्सेसिबल नहीं होंगे और बाकी मेंबर एक्सेसिबल हो जाएंगे. नाउ आई एम गोइंग टू डेवलप वन सब क्लास प्रोग्राम. सब क्लास. ओके, एक्सटेंड्स व्हाट? सेम क्लास. ये वाला, इस क्लास को एक्सटेंड कर लेते हैं, है ना. इस क्लास में सारे मेंबर दे रखे ना मैंने. इस क्लास को एक्सटेंड करते हैं. अब इस क्लास को जब एक्सटेंड करोगे तो आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे या पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाओगे? टेल मी फास्ट. चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा, पेरेंट का? चाइल्ड का. चाइल्ड मींस व्हाट? टेल मी फास्ट. व्हाट इज द नेम ऑफ चाइल्ड? सब क्लास. सब क्लास. वेरी गुड. सो इफ आई क्रिएट चाइल्ड ऑब्जेक्ट, again if you are trying to access private member, then what will happen? Compile time error. Okay, प्राइवेट मेंबर सिंपली आप दिमाग में सेट कर लो. प्राइवेट मेंबर जो हैं वो अपनी क्लास के बाहर नहीं जाते हैं, राइट? ओके, अगेन we'll get compile time error at line number 6 and line number 15. Okay, line number 6 and line number 15. You got my point? Now, so you have to comment out this line again. That means what? Private member cannot be accessed outside the class with the without power of inheritance. आप इनहेरिटेंस यूज भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, इनहेरिटेंस यूज नहीं करो तो भी दिक्कत नहीं, बट आप प्राइवेट मेंबर्स को क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं पाओगे. ओके ओके, जो पॉइंट एफ है, एफ मींस व्हाट? आपको पैकेज यूज करना पड़ेगा. अभी तक आप ये समझो, अभी हम वी आर इन सेम पैकेज. अभी तक जो हम कोड कर रहे हैं सेम पैकेज में कर रहे हैं, है ना. ये 3 लाइनें पढ़ ली हमने. सेम पैकेज मतलब कंफ्यूज मत होना. सेम पैकेज जो है वो पैकेज अभी टॉपिक आएगा तब क्लियर हो जाएगा. बहरहाल अभी आप समझो कि हम सेम पैकेज के बारे में बता रहे हैं, मतलब सेम क्लास इन सेम पैकेज,
नॉन सब क्लास इन सेम पैकेज, सब क्लास इन सेम पैकेज। यानी कि इतना पढ़ लिए हम लोग। एनी डाउट? Any doubt? I will teach you. You have to remember and you have to save this content properly in your system. Okay. We'll teach you these two line in unit 4. मैं अभी बता सकता हूँ, but आप you cannot digest at this moment of time, right? Means what? We need to create package. Then only you can understand. So you can currently, अगर मैं आप E तक कॉलम E तक की बात करेंगे तो there is no difference in between public, protected and default. अगर नॉन सब पैकेज की बात करेंगे, सेम पैकेज की बात करेंगे, सेम पैकेज के केस में देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। बट जैसे ही पैकेज बदलेगा, डिफरेंट पैकेज आएगा इन अदर पैकेज, तो वैसे क्या होगा? ओनली पब्लिक मेंबर विल एक्सेसिबल, नो अदर मेंबर विल एक्सेस। पब्लिक के अलावा कोई भी मेंबर एक्सेस नहीं कर सकते हो। बट किसी अदर पैकेज में आप इनहेरिटेंस लगाते हो तो पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड अलाउड रहेंगे, ये दो अलाउड नहीं रहेंगे। ये देखो, प्राइवेट तो कभी भी अलाउड है ही नहीं, प्राइवेट को दिमाग से निकाल दो, अपनी क्लास के अलावा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। और डिफॉल्ट की लिमिटेशन क्या है? सेम पैकेज, अगर पैकेज सेम रहेगा तो ही डिफॉल्ट एक्सेसिबल है, अदरवाइज डिफॉल्ट नहीं है। और पब्लिक एनीवेयर, पब्लिक पूरे कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई मेंबर पब्लिक है तो उसको कहीं पर भी एक्सेसिबल कर सकते हो, ओके। और प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है कि प्रोटेक्टेड अपने पैकेज में तो कहीं पे भी चला जाएगा सेम पैकेज में, बट अगर पैकेज बदलेगा तो अगर इनहेरिटेंस नहीं लगाया तो नहीं चलेगा, इनहेरिटेंस लगा दिया तो चल जाएगा। डिफरेंस समझ में आ गया? एनी डाउट टू एनीवन? पैकेज के बाहर जाओगे, अगर आप इनहेरिटेंस नहीं लगाते हो तो प्रोटेक्टेड भी एक्सेस नहीं कर पाओगे, इनहेरिटेंस लगा दोगे तो प्रोटेक्टेड चल जाएगा। और पब्लिक तो एनीवेयर, कभी भी आप पब्लिक को एक्सेस कर सकते हो, ओके। एनी डाउट? समझ में आया नहीं? Okay, I want to add one more things. The things is what? Y class, y top level class either should be only default or public. This is another question. ये जो पॉइंट है ये अलग है, ये इसमें कवर नहीं हो रहा है। जो दैट पॉइंट जो हम अभी पॉइंट नीचे डिस्कस कर रहे हैं वो इससे रिलेटेड नहीं है। ये क्या है? ये दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली, दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मेंबर ऑफ द क्लास। अब यहाँ मेंबर ऑफ द क्लास की बात हो रही तो मेंबर कौन से कहलाएंगे? सिर्फ वेरिएबल, मेथड एंड ब्लॉक कहलाएगा नहीं? कंस्ट्रक्ट नहीं, ब्लॉक नहीं आएगा इसमें, मैं पहले बता चुका हूँ। ब्लॉक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यू हैव टू ऑब्जर्व दिस लाइन, वी कैन नॉट यूज विजिबिलिटी कंट्रोल अलोंग विद द ब्लॉक, ओके। सो ये रूल जो मैंने बताया है, दिस रूल इज ओनली एप्लीकेबल ओनली फॉर मेंबर मींस व्हाट? हियर मेंबर मींस व्हाट? वेरिएबल मींस स्टैटिक नॉन स्टैटिक। लोकल वेरिएबल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, ओके। देखो जी, लोकल वेरिएबल मैं करके दिखा देता हूँ। कोई लोकल वेरिएबल मैंने यहाँ लिया, लाइक इंट ए के आगे मैंने पब्लिक लगा दिया, नॉट अलाउड। लोकल वेरिएबल के साथ कुछ भी अलाउड नहीं है, यू हैव टू ऑब्जर्व, ओके। illegal start of expression, not allowed along with the local variable, any of the modifier not allowed along with the variable. So that is why I'm typing static and non-static variable, okay, method and constructor. So in and inner class. So this rule is applicable only for static, non-static variable, method, constructor and inner class, okay. But जो inner class, अब बात होती है top level class की। Why top level class should be either default or public. So you have to understand, default or public. Default means that class can only be, accessed
विद इन सेम पैकेज, विद इन सेम पैकेज। अभी तक आप ये समझो हम सेम पैकेज पढ़ रहे हैं। ये अभी जो प्रोग्रामिंग जितनी आज तक मैंने पढ़ाई शुरू से लेकर आज तक सेम पैकेज कहलाएगी, मतलब अभी हम सेम पैकेज में हैं। अगर आप पैकेज के बाहर जाओगे तो डिफॉल्ट क्लास विल नॉट एक्सेसिबल इफ यू एक्सेस डिफॉल्ट visibility control class outside the package, if you access default class outside the package, then we will get CTE, compile time error. Got my point? करके दिखाना पड़ेगा। ये पैकेज बनाना, मुझे लिए पैकेज बनाना 2 मिनट का काम है, बट मैं पैकेज पढ़ाना नहीं चाह रहा हूं अभी। अगर आप कहोगे तो दिखा भी दूंगा। एनी डाउट प्लीज टेल मी। आपको लगता है दिखाने की जरूरत है तो दिखा सकता हूं मैं। ओनली 2 और 3 मिनट जॉब, but the compilation of package program is quite different from normal program. compilation process थोड़ा सा अलग है उसका, but only 2-3 minute jobs. No sir. But you have to understand the concept, na? Or you have to wait till unit 3 completed. Once unit 3 completed, unit 4 very first topic is what package. तो unit 4 का पहला ही topic है। Okay, public means what? That class can be accessed within same package as well as another outside the package और another package। एक ही बात है, another package दूसरे पैकेज में भी एक्सेसिबल है। इफ अ क्लास, ओके, तो डिफरेंस समझ में आया? या अब एक अगला क्वेश्चन ये है, प्रोटेक्टेड अलाउड क्यों नहीं है? देखो दो ही चीज पॉसिबिलिटी है, या तो ये अपने पैकेज के बाहर जा सकता है या तो नहीं जा सकता है। डिफॉल्ट में इस अपने पैकेज के बाहर नहीं जाएगा। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या हुआ? सॉरी, पब्लिक का मतलब अपने पैकेज के बाहर एक्सेसिबल है। बट प्रोटेक्टेड यहाँ पर क्यों नहीं है? प्रोटेक्टेड का कोई लॉजिक भी तो नहीं है, क्लास है, या तो जाएगी या नहीं जाएगी। राइट, दो ही पॉसिबिलिटी है। जाएगी, जाने का मतलब अपने पैकेज से बाहर जा सकती है, दैट मीन्स पब्लिक। अपने पैकेज के बाहर नहीं जाएगी, दैट मीन्स डिफॉल्ट। There is no logic of protected. There is no logic of private. That's why some people not allowed not allowed to declare top level class as private and protected. But the variable is what? You can see the difference. Variable, method and constructor declared as what? Protected and private as well. Right? So you understand why protected and private not allowed? क्लास के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो अपने पैकेज के बाहर एक्सेसिबल होगी या नहीं होगी। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या हो गया? आधी एक्सेस होगी आधी नहीं होगी। दिस इज इलीगल। ओके, ऐसा तो नहीं कोई क्लास आधी एक्सेस हो आधी नहीं हो, है ना? सो मीन्स क्लास या तो एक्सेस होगी अपने पैकेज के बाहर या नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो कब नहीं होगी? जब डिफॉल्ट होगा स्कोप उसका, और जब पब्लिक होगा तो अपने पैकेज के बाहर एक्सेसिबल होगी। So you got my point overall. What is the discussion? Visibility control. Any doubt? Okay. I'm adding one more thing. Rules related to overriding. Rules related to visibility control. Visibility control. Rules related to with respect to method overriding से रिलेटेड भी कुछ रूल्स हैं। किसके? विजिबिलिटी कंट्रोल के। क्या रूल है? सपोज ध्यान से समझना यहाँ पर। इफ पेरेंट क्लास मेथड्स का स्कोप क्या है? सपोज पेरेंट क्लास का मेथड का स्कोप पब्लिक है, ठीक है। मैं इसका प्रैक्टिकल करके अभी जस्ट दिखाऊंगा, पहले समझ लो। अगर विजिबिलिटी कंट्रोल रूल विद रिस्पेक्ट टू मेथड ओवरराइडिंग, इफ पेरेंट क्लास मींस पेरेंट क्लास का मेथड कैसा है? मेथड की तो ओवरराइडिंग होती है, और मेथड कैसा होना चाहिए? नॉन स्टैटिक की ओवरराइडिंग होती है। स्टैटिक की क्या होती है? स्टैटिक मेथड की हाइडिंग होती है। राइट, तो नॉन स्टैटिक मेथड की ओवरराइडिंग होती है। पॉलीमॉर्फिज्म
concept is only applicable for non-static method. Only non-static method. Okay, non-static method of the class. वेरिएबल पे एप्लीकेबल है पॉलीमॉर्फिज्म, किसी भी टाइप के वेरिएबल, नॉन स्टैटिक स्टैटिक वेरिएबल पे? टेल मी फास्ट प्लीज. नो, फॉर नॉन स्टैटिक मेथड. सिर्फ नॉन स्टैटिक मेथड के लिए पॉलीमॉर्फिज्म बनी है. अगर पेरेंट क्लास का मेथड कैसा है? पब्लिक. तो चाइल्ड क्लास आप जब ये इसको मेथड क्या बोलते हैं? ओवररिडन मेथड. ओवररिडन मेथड. ठीक है ना, ओवररिडन मेथड. चाइल्ड में जब आप ओवरराइडिंग करोगे तो आपके पास अगर पेरेंट है पब्लिक अगर आपने पब्लिक लगाया है तो आप जब ओवरराइडिंग करोगे तो आपको पब्लिक ही लगाना पड़ेगा. गॉट माय पॉइंट? ओवरराइड मेथड, ये ओवरराइड मेथड है. ओवरराइड मेथड. ऑरेंज और ग्रीन स्केच से बॉर्डर बना देते हैं. ठीक है भाई प्लीज सुनो अच्छे से. अगर आपने पेरेंट क्लास के मेथड में क्या लगाया? पब्लिक लगाया. तो चाइल्ड मेथड में आप जब ओवरराइडिंग करोगे तो पब्लिक ही लगाओगे. ठीक है ना. अच्छा, दूसरा कॉम्बिनेशन वन केस 1. ठीक. अब मैं जरा जल्दी से, अब मैं पूरा चीज नहीं लिख रहा हूँ. ठीक है ना. मैं केस 2 में क्या कर रहा हूँ? केस 2 में अगर आपने पेरेंट में क्या लिखा, क्या डिक्लेयर कर दिया? पेरेंट का मेथड आपने कैसे कर दिया? प्रोटेक्टेड. तो चाइल्ड का कैसा हो सकता है? चाइल्ड जो है, या तो आप चाइल्ड में प्रोटेक्टेड यूज करो, प्रोटेक्टेड, या प्रोटेक्टेड यूज कर लो या फिर पब्लिक यूज कर लो. समझ गए नहीं? जब आप ओवरराइडिंग करोगे, अगर पेरेंट क्लास का ओवररिडन मेथड कैसा है? प्रोटेक्टेड. तो जो है आप चाइल्ड में जब ओवरराइडिंग करोगे तो आप प्रोटेक्टेड भी लगा सकते हो और पब्लिक भी लगा सकते हो, और पब्लिक कुछ भी लगा सकते हो. यू गॉट माय पॉइंट? केस 3 क्या? अगर पेरेंट क्लास का मेथड डिफॉल्ट है, you have to observe, otherwise we will face some difficulties at the time of implementing overriding concept. डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट है तो आप डिफॉल्ट लगा सकते हो और प्रोटेक्टेड लगा सकते हो और पब्लिक लगा सकते हो. यानी कि अगर पेरेंट क्लास का डिफॉल्ट मेथड है, पेरेंट क्लास का मेथड कैसा है? डिफॉल्ट. तो आप चाइल्ड में डिफॉल्ट लगा सकते हो, प्रोटेक्टेड और पब्लिक. नेक्स्ट केस 4. अगर पेरेंट कैसा है? टेल मी फास्ट. प्राइवेट मींस व्हाट? ओवरराइडिंग नॉट अलाउड. मेथड ओवरराइडिंग नॉट अलाउड. क्यों? क्योंकि डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म अचीव नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं अचीव कर पाएंगे? क्योंकि प्राइवेट के थ्रू क्या हुआ? वो मेंबर नॉट एप्लीकेबल टू चाइल्ड क्लास. एनी ऑफ द प्राइवेट थिंग्स नॉट एप्लीकेबल टू, नॉट एक्सेस बाय चाइल्ड. चाइल्ड के पास नहीं जाएगी. जब जाएगी नहीं तो ओवरराइडिंग होगी नहीं होगी. तो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनकी ओवरराइडिंग नहीं होती है? नंबर 1, स्टैटिक मेथड की ओवरराइडिंग नहीं होती है. फाइनल की नहीं होती है. फाइनल मेथड की ओवरराइडिंग नहीं होती है. नेक्स्ट पॉइंट, प्राइवेट मेथड की भी ओवरराइडिंग नहीं होती है. लेकिन तीनों के अलग अलग रीजन है. अगर आपको कोई नॉन स्टैटिक मेथड आप चाहते हैं वो ओवरराइड ना हो तो आप उसको फाइनल बनाएंगे. स्टैटिक की ओवरराइडिंग नहीं होगी, उसकी हाइडिंग होगी. उसको बोलेंगे मेथड हाइडिंग. फाइनल के लिए क्या है? किसी नॉन स्टैटिक मेथड को मैं पढ़ा चुका हूँ. किसी नॉन स्टैटिक मेथड को आप चाहते हैं ये ओवरराइड ना हो तो आप उस नॉन स्टैटिक मेथड को क्या बना देंगे? फाइनल. और प्राइवेट क्या है? प्राइवेट नॉट एक्सेसिबल टू चाइल्ड क्लास. जब चाइल्ड क्लास के लिए एक्सेसिबल ही नहीं है तो ओवरराइडिंग पॉसिबल है? नो. So this is what all about related to overriding. Okay, now I'm going to implement these rules in single program. Now I'm going to develop one class that is what? Base class. And what? Child class. Child extends base class. Okay, ध्यान से समझना. यहाँ पर क्या है? M1. जब इस यहाँ पर मैंने सपोज पहले केस में पब्लिक लगा दिया. अगर पब्लिक लगा, अगर आप इसको ओवरराइड करोगे तो आप ऐसे ओवरराइड नहीं कर पाओगे. आपने सिंपल लिख दिया M1, क्योंकि पब्लिक एक्सेसिबिलिटी क्या है? वीकर है या स्ट्रॉन्गर है?
एक्सेसिबिलिटी के मामले में पब्लिक वीकर है या स्ट्रॉन्गर? वीकर है, क्योंकि ये भाई कमजोर, एक कमजोर, वीकर मीन्स कमजोर, किसी कमजोर आदमी को आप कहीं भी धकेल सकते हो ना, तो ये सब जगह एलिजिबल है ना। देखो पब्लिक जो है हर जगह जा सकता है, मैंने अभी एक डायग्राम में पूरा समझा रखा है। पब्लिक को आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो, दैट मींस व्हाट, पब्लिक इज व्हाट, वीकर एक्सेसिबल। तो वीकर एक्सेसिबल के लिए जब आप ओवरराइडिंग करोगे तो आपको एक्सेस विजिबिलिटी कंट्रोल सेम रखना होगा, अदरवाइज यू विल गेट कंपाइल टाइम एरर। देखो आई एम ट्राइंग टू override M1 method, but M1 methods overridden M1 method is what, public, and override M1 method is what, default is what, higher accessible, okay, और higher privileges। तो आप क्या करोगे, पब्लिक अगर आपने ऊपर लिखा है तो मींस व्हाट, चाइल्ड ओवरराइडिंग मेथड भी पब्लिक होना चाहिए, ये मैं पढ़ा चुका हूं यहाँ पर। ये देखो ना, अगर आपका पेरेंट क्लास का मेथड कैसा है, पब्लिक, तो चाइल्ड क्लास में जब आप ओवरराइडिंग करोगे तो वो भी पब्लिक होगा, अदरवाइज कंपाइल टाइम एरर आएगी। ओके, so this is not public, right? So this compile time error or not? Yes, so you have to observe compile time error. What M1 cannot override in base M1 in base class because of that attempting to assign weaker access privileges was public. Got my point? Attempting to assign weaker access public was public. Okay, so that's good. So you have to observe these things now, perfectly override. ओके नेक्स्ट, इसी प्रोग्राम में समझ लो सब चीजें, ठीक है ना। अगर ये प्रोटेक्टेड होता, प्रोटेक्टेड तो क्या होता, तो पब्लिक लिख सकते हैं, पब्लिक अलाउड है, डिफॉल्ट अलाउड है, यस सर, डिफॉल्ट अलाउड है, देखो प्रोटेक्टेड लिखा हुआ है, तो क्या क्या अलाउड है प्रोटेक्टेड के केस में, प्रोटेक्टेड और पब्लिक अलाउड है, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डिफॉल्ट, मींस कंपाइल टाइम एरर और नॉट, यस डेफिनेटली कंपाइल टाइम एरर। यस, okay, you have to observe। okay, so what are the combination you can use? You can use public, yes, correct, no problem। okay, you can also be use protected, okay, now got compile fine, you got my point। and the next option is what, default means what, not right, if you don't write default, if you don't write any visibility control, then by default is considered as what, default। okay, in the case of default you can use any of the modifier, like default, protected and यहाँ पर आपने डिफॉल्ट है, यहाँ पर आप प्रोटेक्टेड यूज कर सकते हैं, नो इशू, कंपाइल्स फाइन। ओके, compiles fine, you can use public also compiles fine। okay, no issue। okay, you can use default also, no issue, right? okay, one more thing, अगर सपोज करो जो ओवरराइडर मेथड है उसको प्राइवेट कर दिया तो क्या हुआ, suppose let's assume if overrider method is what, private, that means what, it's compile time error or not? यस देखो जो ओवरराइड मेथड कैसा है, पब्लिक है ना, वो डिफॉल्ट है ना, तो ये प्राइवेट नॉट अलाउड है यार, गॉट माय पॉइंट। तो ये मैंने लिखा नहीं, प्राइवेट तो बिलोंग्स करता ही नहीं है ना, प्राइवेट तो आप लिख ही नहीं सकते किसी भी केस में, ओनली अलाउड इज व्हाट, मैंने अलाउड लिख दिया, जो अलाउड है, किस केस में क्या क्या अलाउड है, नॉट अलाउड मैंने नहीं लिखा है, राइट? ओके वेरी गुड, ठीक है ना। अब अगर पेरेंट प्राइवेट है तो क्या होगा, पेरेंट इज प्राइवेट, दैट मीन्स व्हाट, एरर कुछ भी नहीं आएगी बट ओवरराइडिंग नहीं होगी। क्यों ओवरराइडिंग नहीं होगी, यू हैव टू ऑब्जर्व, देखो एरर कुछ भी नहीं आएगी, यू हैव टू ऑब्जर्व, एरर नहीं आएगी, मैंने बता दिया ना एरर, बट क्या प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम समझो, ओवरराइडिंग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये अब हाइड हो गया, ये क्या हो गया, दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू चाइल्ड क्लास, ये चाइल्ड का नहीं है। तो जब चाइल्ड ने अपना खुद का M1 बनाया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, इसके आगे प्राइवेट लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओवरराइड कभी प्राइवेट मेथड कभी भी ओवरराइड नहीं करेगा, प्राइवेट मेथड डजंट बिलोंग्स टू ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट, प्राइवेट मींस ओनली एप्लीकेबल टू सेम क्लास, but overriding concept is depends on at least 2 class, overriding concept depends on inheritance means this method is not participated to
child class. That means, is this overriding concept will be applicable or not for private method? Overriding always will be done on the basis of two classes, but this method is not applicable to child. So this means what? Not overriding. There is no compile time error. Even there is no compile time error. Compile time error कुछ भी नहीं है, बट ओवरराइडिंग नहीं मानी जाएगी. मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ ओवरराइडिंग कब पूरी मानी जाती है. राइट, देयर इज नो कंपाइल टाइम एरर, बट ओवरराइडिंग नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? नाउ आई एम क्रिएटिंग चाइल्ड न्यू, आई एम क्रिएटिंग चाइल्ड ऑब्जेक्ट. ओके, यू हैव टू ऑब्जर्व कैसे नहीं मानी जाएगी चाइल्ड ओवरराइडिंग, है ना. यू हैव टू ऑब्जर्व. नाउ आई एम क्रिएटिंग वन वेरिएबल of like p. I am implementing dynamic polymorphism. Okay, creating object of child and assign the reference of child into parent type variable. Parent type variable. This is what dynamic polymorphism. Okay, now I'm going to call m1 method by using what? By using p reference. By using what? P reference. P reference. P reference. Okay, but m1 method or m1 method that is which is available in base class is private or non-private? Tell me fast. M1 method which is declared in P. P means what? Base class. Base class का M1 प्राइवेट है या नहीं? प्राइवेट है. ओवरराइडिंग तो होगी नहीं. ओवरराइडिंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो प्राइवेट है, अपनी क्लास के बाहर एक्सेसिबल ही नहीं है, और आप अपनी क्लास के बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं बेस क्लास के बाहर. यानी ये लाइन ऑफ कोड कहाँ लिखा है? चाइल्ड के अंदर. चाइल्ड के अंदर से आप एक्सेस करोगे, एक्सेस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. कैन कंपाइल टाइम एरर. कंपाइल टाइम M1 cannot be called. Okay, this is the concept. That is why private does not belongs to what? Private does not belongs to overriding concept. Okay, got my point? Yes, sir. Okay, देखो यहाँ पर मैंने लिखा M1 parent, M1 child. आपने क्या कर दिया यहाँ पर? ये क्या होगा? ये मैं बता दूंगा क्या है. ये बताओ. अगर पेरेंट का इसका स्कोप क्या है? अब इसका विजिबिलिटी कंट्रोल डिफॉल्ट, जो कि लिखा नहीं जाएगा. ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूँ फिर भी समझने के लिए. डिफॉल्ट है इसका, समझ में आया? अब डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट मेथड जब होता है तो ओवरराइडिंग के लिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर ऑब्जर्व करो. डिफॉल्ट के केस में जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या है? डिफॉल्ट लगा सकते हो, प्रोटेक्टेड लगा सकते हो, पब्लिक लगा सकते हो. बट मैंने क्या लगा दिया है? टेल मी फास्ट. तो प्राइवेट. तो ये कंपाइल टाइम एरर है या नहीं है? यस भाई. ये मेथड ओवरराइडिंग के लिए एलिजिबल है ना. ये मेथड ओवरराइडिंग के लिए एलिजिबल कब होगा? जब ये मेथड नॉन प्राइवेट होगा. तो नॉन प्राइवेट है, हाँ है. यानी कि ओवरराइडिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. ओवरराइडिंग हो सकती है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है डिफॉल्ट के लिए? तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज व्हाट? डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक. बट वी आर यूजिंग व्हाट? प्राइवेट. दैट इज व्हाट कंपाइल टाइम ऑलरेडी डिस्कस्ड. अभी मैंने जस्ट बताया था. दैट इज व्हाट कंपाइल टाइम एरर. ओके, गुड. सो यू हैव टू रिमूव, otherwise overriding concept will not applicable. देख रहे हैं आप? ये मैंने डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म लगाया. डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म से ही जाके फाइनली ये पता चल पाएगा क्या ओवरराइडिंग के लिए ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो सकता है ओवरराइडिंग में या नहीं. तो मैंने सारे सिनेरियोज बताए. ठीक है, अब प्राइवेट यहाँ पर आ गया. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म फेल हो जा रही है. दैट मीन्स व्हाट? नॉट एलिजिबल फॉर overriding. Now is this eligible or is this eligible? Public. Tell me fast. Is this eligible or not? Yes sir, eligible. Yes sir. तो easy है, कुछ भी नहीं. डिफॉल्ट तो अगर पेरेंट डिफॉल्ट है, चाइल्ड डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक कुछ भी हो सकता है. मैंने पब्लिक लगा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं. ओवरराइडिंग में होगी. डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म से अचीव होगी. यस. तो मेथड कौन सा कॉल होगा रन टाइम पे? टेल मी फास्ट प्लीज. व्हाट इज द आंसर? Why we are performing overriding? First you tell me, then only you can answer. Why we are performing overriding? If we are not satisfied with the parent implementation. Parent implementation is what? M1 parent. If we are not satisfied with the parent implementation, then we perform overriding. हमने override कर दिया. पुराना implementation छुप जाएगा, नया वाला दिखेगा. So that means what is the output of the program? Child parent. Child parent. Very good. This is what hello world is nothing. I'm not discussing about this. Okay, child parent. That is very good.
So this is all about what? This is all about visibility control. Okay, you understand the points concept or not? You understand the concept? Tell me fast, please. Only one thing is left, that is what? Finalize method.